سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسرائیل کے بڑھتے مظالم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ میں فلسطین کے ساتھ مکمل یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، نیتن یاہو درندگی کر رہا ہے، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا۔ فلسطین میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، پچھلے 9 مہینوں سے ہر روز غزہ میں لاشیں گرائی جا رہی ہیں، شہروں کے شہر اور محلوں کے محلے ان کو زمین بوس کر دیا گیا ہے۔ 40,000 سے زائد فلسطینی بشمول ہزاروں بچوں کے شہید کیے جا چکے ہیں، ہسپتالوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، یعنی ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہوئی اور راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا۔ دنیا اشک بار ہے کہ اس طرح کی درندگی کی جا رہی ہو اور دنیا خاموش ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کو پاؤں تلے روندا گیا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد لانے پر غور ہوگا۔ اسی سے متعلق مزید معلومات لیں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ جی یاسر، کیا معلومات ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا جو اہم اجلاس ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کمیٹی روم نمبر 2 میں جاری ہے، اور وفاقی کابینہ اجلاس میں فلسطین میں اسرائیلی مظالم پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ اجلاس میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر غور ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد سمیت امور جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے۔ کابینہ کا جو آج ہے اس کا 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں چین اور پاکستان کے مابین تجارت بڑھانے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پیش ہوگی۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج چارٹر کے دوبارہ نفاذ کی منظوری جو ہے وہ آج کے کابینہ اجلاس میں دیے جانے کا امکان ہے۔ مجوزہ کنگ حماد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹ میڈیکل سائنسز بل جو ہے وہ آج کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ لاپتہ افراد سے متعلق وزراء کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ آج ایجنڈے میں شامل ہے، جبکہ نشکاری بورڈ کے ممبران کی تعداد میں اضافے کی سمری بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ بین المذاہب ہم آئینگی پالیسی کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ سال 2021-22 اور سال 2022-23 میں فیڈریشن سے متعلق جو پالیسیز ہیں ان پر عمل درآمد سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ بھی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ ریاستی انٹرپرائزز سے متعلق کابینہ کمیٹی کے 22 جولائی کے فیصلوں کی جو توثیق ہے وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ میں ریاستی ملکیتی انٹرپرائزز پر بریفنگ جو ہے وہ آج وفاقی کابینہ کو دی جائے گی۔ بہت شکریہ یاسر ملک، آپ نے تفصیل بتائی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصب دھماکہ خیز مواد سے شہید کیا گیا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق بم 2 ماہ قبل گیسٹ ہاؤس میں خفیہ طور پر نصب کیا گیا تھا۔ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کی رہائش گاہ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔ گیسٹ ہاؤس کی سیکیورٹی ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس تھی۔ یورپی تجزیہ کار کا دعویٰ ہے کہ حملے کے لیے اسرائیل نے جاسوسی سافٹ ویئر استعمال کیا۔ واٹس ایپ میں اسپائی ویئر لگائے گئے۔ اسماعیل ہانیہ کی بیٹی کو کال کرنے پر لوکیشن ٹریس کی گئی۔ شہید اسماعیل ہانیہ کو آج دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس میں پہلے سے نصب دھماکہ خیز مواد سے شہید کیا گیا۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق بم 2 ماہ قبل گیسٹ ہاؤس میں خفیہ طور پر نصب کیا گیا تھا۔ غزہ سے متعلق خبر آپ کو دیں، اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی، اب تک 82,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ غزہ میں 39,480 افراد شہید، 91,128 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 16,314 بچے، 10,980 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 198 سرکاری عمارتیں، 117 تعلیمی ادارے، 610 مساجد کو نقصان پہنچا۔ آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت تھم نہیں سکی، اب تک 82,000 ٹن بارود برسایا جا چکا ہے۔ گوادر سے خبر شامل کریں گے، جہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ صوبے بھر میں دھرنے ختم کر دیے گئے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر 4 روز پہلے گوادر پہنچا۔ وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کی جانب سے یہ بتایا گیا، آج سے صوبے بھر کی تمام قومی شاہراہیں
खोल दी जाएंगी। एलामिये में ये भी बताया गया है। बलोच इत्तेहादी कमेटी धरना खत्म करने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा भी किया जाएगा। एहतजाज के दौरान हुकूमत, इंतजामिया और इदारों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी किया। बलोच इत्तेहादी कमेटी और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। सुबह भर में धरने खत्म होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर 4 रोज़ कबल गवादर पहुंचा वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू। मुल्क में सनतकारों समेत मुख्तलिफ हलकों की जानिब से IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी का मुतालबा सामने आ रहा है, मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी के लिहाज से निस्फ से ज़ायद IPPs गैर मुल्की या निजी मलकियत नहीं है, बल्कि सरकार की मलकियत में चलते हैं, जो न सिर्फ कई निजी बिजली घरों से ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा 45% कैपेसिटी पेमेंट भी ले उठते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। IPPs ने मुल्की मईशत को यरगमाल बना लिया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में IPPs को 3127 अरब रुपए की अदायगियां की गईं, जिनमें से खरीदी गई बिजली की कीमत 1198 अरब रुपए थी, जबकि 1929 अरब रुपए बिजली खरीदे बगैर कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए गए। दिलचस्प बात यह है कि पैदावारी सलाहियत के लिहाज से 52% IPPs हुकूमती मलकियत, सिर्फ 25% निजी और 23% CPEC मंसूबों का हिस्सा हैं। इन IPPs को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट का सबसे ज्यादा यानी 45% हिस्सा सरकार, 40% CPEC, जबकि सिर्फ 15% निजी बिजली घरों को जाता है। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि सरकारी IPPs बहुत से निजी बिजली घरों से ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। नेपरा की जुलाई 2024 की मेरिट लिस्ट के मुताबिक थर्मल पावर से सस्ती बिजली पैदा करने वाले पहले 20 प्लांट्स में कोई भी सरकारी IPP शामिल नहीं, जहां उच्च पावर थर कोल ब्लॉक 1, लिबर्टी पावर, थर एनर्जी और थल नोवा जैसे निजी प्लांट्स गैस और कोयले से 3 रुपए से 5 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार का सबसे सस्ता IPP हवेली बहादुर शाह RLNG पर 21 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा कर रहा है। इसी तरह LNG पर बिजली पैदा करने वाला बलोकी पावर प्लांट 22 रुपए फी यूनिट, भिक्की पावर प्लांट 23 रुपए फी यूनिट, पंजाब थर्मल 24 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। कंबाइंड साइकिल पर चलने वाला सरकारी प्लांट नंदीपुर 30 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, सार्फिन ने इन सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स को बिजली खरीदे बगैर 142 अरब रुपए सालाना की अलग अदायगियां की। यूं कैपेसिटी पेमेंट शामिल करके इन प्लांट्स की बिजली 30 रुपए से 42 रुपए फी यूनिट तक पड़ती है। इन पांचों सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 5421 मेगावाट है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी प्लांट्स का एफिशिएंसी लेवल बहुत से निजी प्लांट से कम है, जिसके बायस इनसे महंगी बिजली पैदा होती है। अभी गवर्नमेंट ने उनकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की। जो रिपोर्ट्स आई है मीडिया में, किसी का रेट $250 मिलियन से ऊपर लगा ही नहीं। यानी देखें आप, वो देखें कि वो 4 बड़े LNG के पावर प्लांट, जिसमें अच्छा उस पर उन्होंने एक बड़े ऑपरेट भी लिखे थे, बड़ी ब्रीफ भी किया था कि ये गेम चेंजर होंगे, ये तब्दीली हो जाएगी। सब लोग कहने लगे यार ये तो ज़बरदस्त। 2 गवर्नमेंट पंजाब के हैं, 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं। कितनी अच्छी बात हो जाए कि जिस प्राइस पे लिए गए थे, काश उसी प्राइस पे तकरीबन $1 बिलियन करीब कहीं सेल हो जाए। अवाम के अदा करदा सरचार्ज से बनने वाला 969 मेगावाट सलाहियत का हाइडल IPP नीलम चेहलम बरसों से बंद पड़ा है। सार्फिन इससे सस्ती बिजली हासिल करने के लिए अपने बिलों में 55 अरब रुपए अदा कर चुके हैं। हाइडल से सस्ती बिजली पैदा करने के लिए लगाए गए दीगर सरकारी IPPs की कहानी इससे भी तशवीशनाक है। 1410 मेगावाट सलाहियत का तरबेला एक्सटेंशन 4 कैपेसिटी पेमेंट के बोझ के बायस सार्फिन को 21 रुपए फी यूनिट में पड़ रहा है। 81 मेगावाट का मालाकंड 3 कैपेसिटी पेमेंट के बोझ के बायस 28 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि 720 मेगावाट का करोड़ पावर प्लांट 26 रुपए फी यूनिट से भी महंगा पड़ रहा है। पानी से बिजली पैदा करने वाले इन सरकारी IPPs की बिजली वापटा के हाइडल मंसूबों से कई गुना महंगी है। हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, पूरा पावर सेक्टर हुकूमत लेके बैठा हुआ है।
52% पावर प्लांट हुकूमत के, सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हुकूमत की, सारी ट्रांसमिशन कंपनियां हुकूमत की। उसके बाद हम आवाम हैं, हमें बोल रहे हैं कि जो भी उसकी कॉस्ट है वो आवाम पे डाल दो। सितम ज़रीफी ये कि आम सारिफ सोलर पावर प्लांट से बिजली पैदा करके 19 रुपए फी यूनिट में हुकूमत को फरोख्त करता है, मगर हुकूमत के अपने सोलर IPPs इससे दुगनी कीमत यानी 41 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। सरकार की मलकियत में चलने वाले न्यूक्लियर IPPs ना सिर्फ सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, बल्कि दीगर सरकारी IPPs के बरक्स इनका प्लांट फैक्टर भी सबसे ज्यादा यानी 83% है। 3,500 मेगावाट के ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 1.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद इन पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब रुपए से जायद है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी IPPs को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट इन बिजली घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात और बैंकों से लिए गए कर्ज के साथ साथ बद इंतजामी की भी नजर हो जाती है। तो उकदा ये खुला कि IPPs के बायस महंगी बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत को किसी और से नहीं खुद से बात करने की जरूरत है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज में दाखिल, जबकि बिजली सस्ती करने और महंगाई में कमी के हवाले से हुकूमती और जमात इस्लामी की टीमों के दरमियान मुज़ाकरात भी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आदिल तनौली ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी आदिल, एक तो धरने की क्या सिचुएशन है ये बताइएगा, दूसरा ये कि अब फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी होगी जमात इस्लामी की? आज देखें, जमात इस्लामी का बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी धरना जो है वो रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर आज 8वें रोज़ भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी की आला क़यादत का इजलास हुआ है। इजलास में ये फैसला किया गया है कि मरकज़ी धरना जो कि रावलपिंडी में है इसको मज़ीद फ़ाल किया जाए और इसके अलावा तमाम दारुल हुकूमतों में जो है वो हेडक्वार्टर्स के सामने धरने दिए जाने का जो है प्लान तरतीब दिया गया है। इसी के साथ जो रावलपिंडी में मरकज़ी धरना है इसके जो मुंतज़मीन हैं इनकी जानिब से आला क़यादत को 14 अगस्त तक तमाम इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल करने की तजवीज़ जो है वो भी बताई गई है। साथ ही साथ अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि उनके जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी तक एहतजाजी धरने जो हैं वो मुल्क गिर बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। और इसके बाद तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों के बाद जो है वो धरने और एहतजाज जो है वो डिवीज़नल सतह तक बढ़ाने की तजवीज़ जो है ये भी ज़ोर हो रही है, क्योंकि 8 रोज़ से रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाद जमात इस्लामी के जो कायदीन हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी जानिब से एहतजाजी धरना बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ जारी है। हुकूमत के साथ 2 मुज़ाकरात के दौर भी हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई भी मुस्बत नतीजा सामने नहीं आ सका। तो इसी वजह से जो है जमात इस्लामी की जानिब से धरने को मज़ीद फ़ाल करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि इनका ये मुतालबा है कि जब तक बिजली और गैस के बिलों में इजाफा जो है वो वापस नहीं लिया जाता और मज़ीद टैक्सेस जो हैं उनको खत्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक यह एहतजाजी धरना जो है जारी रहेगा। तो धरनों का दायरा कर मज़ीद बढ़ाया जाएगा, ये नई स्ट्रेटजी होगी जमात इस्लामी की। आदिल तनौली, आपने हमें तफसीलात फराहम की, आपका शुक्रिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मुल्क भर में झूठ पर मबनी मुकदमात बनाए गए, 9 मई के केसेस भी झूठे हैं। तोशाखाना केस में कुछ नहीं, अलकादिर ट्रस्ट का केस बनता ही नहीं। वो ATC लाहौर के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। बड़ा भोंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। जितने केसेस हैं, तोशाखाना केस में कुछ है भी नहीं, अलकादिर ट्रस्ट का केस ही नहीं बनता। आलिया हमजा साहिबा की फैमिली के वहाँ पे वो बैठी हुई थी जेल से रिसीव करने के लिए, पूरी पुलिस सिंध से भी उनको झूठे केसों में मुलव्वस करने का काम हो रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और जो करप्शन का बाजार जो पीपल्स पार्टी कर रही है सिंध में हमारे वर्कर्स के खिलाफ, शदीद अल्फाज में उसको कंडेम करते हैं, उसकी मज़ामत करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन तलब कर लिए। अदालत ने PTA हुकाम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। जी इशफाक, क्या अहवाल रहा समाअत का? बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने उस्मा बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की तो अदालत ने 5 अगस्त को सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन आइंदा समाअत पर तलब कर लिए। साथ ही साथ अदालत ने PTA अथॉरिटी
कमेटी के सीनियर अफसर को भी आईना समाअत पर पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने ये कहा कि FIA से बताएं आप ट्विटर एक्स से कैसे राब्ता करते हैं, किस कानून के तहत ट्विटर एक्स को काम करने की इजाजत देते हैं। तो इस बारे में FIA के ऑफिसर ला इल्म रहे और ये कहा कि इस बात का हमें कोई इल्म नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने हैरत का इजहार किया और रिमार्क दिए कि दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए क़वाइद व ज़वाबित मौजूद हैं, क्या यहाँ पर ऐसे कोई क़वाइद व ज़वाबित नहीं बनाए गए। ट्विटर एक्स पूरी दुनिया के ममालिक में शिकायत पर जवाबदेह है, तो पाकिस्तान में वो क्यों जवाबदेह नहीं है। अदालत ने इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट 5 अगस्त को तमाम फ्रीकैन से तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील फराहम की।